Yeah, good evening, everyone. Yes, please come on in, settle down. I'm still seeing a few folks joining in. First of all, let me take this opportunity to thank all of you who have joined. And most importantly, you joined on time. So give me a moment to pull up my presentation and be ready. Yes, here I am with my presentation. Okay, so this is our first session on AI, and I've been joined by our subject matter expert, Namrata Madam. So thank you for joining. Today's session is on understanding AI. AI is everywhere, right? So आजकल जो भी बात करता है वो AI के बारे में बात करता है. But AI है क्या? What exactly is AI? Very important for us to understand. Very important for us to know as to what we understand by AI. AI has multiple different meaning. I understand AI the way I understand, and you will understand AI the way you understand. It's like six blind people touching an elephant. One blind person touching the trunk thinks it's a snake. The other one touching the leg thinks it's a pillar. And एक पीछे वाला पूंछ पकड़ता है और उसको उसको लगता है कि एलिफेंट इज अ रोप. राइट, सो अपने हिसाब से हम सोच रहे हैं कि ये दिस इज एआई. बट एआई है क्या इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी शुड आस्क आवरसेल्व्स. ऑफ कोर्स एआई का मतलब है, मतलब नहीं, एआई एक्सपैंड्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. राइट, यस, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बट व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने के लिए ना पहले ये समझना है कि मशीन्स आर लर्निंग एंड ह्यूमंस आर हुक्ड. हम सब लोगों की यही यही स्थिति है. हम सब लोग इतना व्यस्त और मसरूफ है अपने मोबाइल फोन में कि मशीन हमारे बारे में सब कुछ जानता है. मशीन यानी अपना ये छोटा सा मोबाइल फोन भी मशीन है, अपना लैपटॉप भी मशीन है, हम जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं वो भी मशीन है आजकल. राइट, सो पहले जैसा मशीन ये नहीं कि वो जो आवाज करे वो मशीन है, नहीं. बिना आवाज के जो जो हम पहन रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, वो सब भी मशीन्स है. राइट, सो व्हाई आर वी सेइंग मशीन्स आर लर्निंग एंड ह्यूमंस आर हुक्ड? वी आर ऑल हुक्ड. राइट, अभी देखो ना, ये जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है ये भी ऑनलाइन के जरिए हो रहा है. आप न जाने कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुए हो. 13-14 लोग जो ज्वाइन हुए हैं, दे हैव ज्वाइन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. The beauty is technology is enabling all of this. Internet technology, information communication technology, all of this has shaped the last 2 decades. So what has changed now? अभी ये चेंज हुआ है कि पिछले 15-16 सालों से we have this digital media and social media. इतना उसका असर हुआ है हम सब पे. We all want to be connected. Yes, we all want to be connected. That's important. But then connect होने के बाद क्या होता है? सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर इज एक्स, देन इंस्टाग्राम, राइट, और क्या है, यूट्यूब डिजिटल मीडिया हुआ. राइट, सो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे हम ग्लूड हैं, जिसके बगैर हमारा दिन शुरू नहीं होता है, जिसके बगैर हम सोने नहीं जाते, जिसके बगैर हम कुछ नहीं करते आजकल. राइट, इतना हम हुक्ड हैं मशीन्स पे. इसे इट इज अ न्यू एडिक्शन. राइट,
So, but why am I talking about this? Is because we are teaching the machines. The machines are not learning. We are teaching the machines. That is one important aspect all of us need to understand. And जब machine सीख रहा है, सीखते सीखते उसका इंटेलिजेंस बढ़ा रहा है, बस. Okay, so it's important for us to understand the different modes of intelligence. Acha, so it is not about artificial intelligence alone. The keyword here is intelligence. Intelligence आया कहाँ से? Intelligence आया human intelligence से. पहले human intelligence, उसके बाद artificial intelligence. That is why आज के जमाने में it's a competition between HI and AI. AI के बारे में तो सब बात करते हैं, सब बोलते हैं. HI के बारे में कोई नहीं बात करता. जो फंडामेंटल है, which is human intelligence. So the way we'll have to look at, we humans, the way we will have to look at is artificial intelligence is here to help human intelligence. It is not here to replace human intelligence. This is something that you will have to understand. ठीक है. So human intelligence is something that we are born with. This is natural intelligence. Artificial intelligence is something that the machines are learning from all of us. Oh, wow. Okay. ये भी मुझे पता है. Tell me something I don't know. Right. So tell me something I don't know. So let me start with this. I just read this yesterday. This is as new as yesterday. Right. So it says 70% Indian teachers use AI tools, but many misunderstand it. यानी वो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बट थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है. किसके बारे में? कि एआई होता क्या है, एआई कहाँ इस्तेमाल करें. तो ये मैं लिंक आपसे शेयर करता हूं, आप भी पढ़ लो. बट उसका जिस्ट ये है, राइट. सो द जिस्ट इज दैट 70% of Indian teachers now use AI tools in classroom practices. So जिनका सर्वे किया है उनके बारे में है ये कि 70% ऑफ इंडियन टीचर्स, आप इसमें हो ना हो वो आप देख लो, बट ओवरऑल ये सेंटिमेंट है इंडिया में कि टीचर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. नॉट नेसेसरली प्री प्राइमरी या प्राइमरी या हायर प्राइमरी और हायर एजुकेशन. इट इज ऑल अक्रॉस, राइट. सो 70% of Indian teachers now use AI tools in the classroom. Wonderful, very good. But what are they using it for? They're using it for lesson planning. अच्छा, आपको अगर लेसन प्लानिंग करना है तो उसके लिए आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हो. अच्छा, ये एआई इधर कहां से आया? एआई मेरी मदद कैसे कर रहा है? टीचर लोगों के लिए वो तो वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि लेसन प्लान करके दे रहा है मुझे. वाह. फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे बच्चों को क्या सिखाना? इंटीजर्स सिखाने हैं. ओके, तो अगर मुझे आज इंटीजर्स सिखाने हैं तो लेसन प्लान करके करके दो. तो वो 2 3 4 घंटे का लेसन प्लान करके दो बोलेंगे तो करके देगा. कौन दे रहा है? चैट जीपीटी. तो सब जानते हैं, राइट. हम सब लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं. वो टीचर लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल लेसन प्लानिंग के लिए ज्यादातर कर रहे हैं. तो थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे है, देखिए, right? The third point is 57% failed to answer a basic AI question despite high self-rated experience. यानी जो 70% टीचर्स AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, 57% of them fail to answer what is AI, basic AI question. इसीलिए हमने सोचा कि ये सेशन कर ले, हमारे टीचर्स का कुछ फायदा हो. And by the way, we're going to have a series of such sessions wherein we will talk about AI tools and various other aspects. तो ये जो लिंक है, ये लिंक मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. एक मिनट. हाँ,
आई एम शेयरिंग दिस लिंक विथ यू folks now. बाद में also we will share it on the website. You can have a look at it there as well. Okay, so chat पे मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ. Okay, so this was इंडिया टुडे में आर्टिकल है. Right. So India Today का ये आर्टिकल as of yesterday. Wonderful. Okay. So the thing is, we don't have to train you to use AI. 70% are already using AI क्लासरूम में. ओके, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस सर्वे से रिवील हो रहा है. ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड. If you have any questions, put it on the chat. I will take it up. So what am I going to cover? Now look at this. Different modes of artificial intelligence. So I will introduce you to AI intelligence, which is artificial intelligence. AI is not just artificial intelligence. It is to be considered for us as educators and teachers. We have to consider AI as additional intelligence, assisted intelligence, adaptive intelligence, augmented intelligence, and autonomous intelligence. All right. Common is intelligence. Okay. Additional intelligence, as the word suggests, ये additional information देगा, additional intelligence देगा. उस additional intelligence से मैं खुद थोड़ा ज्यादा सीख सकता हूं और बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को थोड़ा और ज्यादा सिखा सकता हूं, सिखा सकती हूँ. Yes. Additional intelligence. Assisted intelligence, it is assisting me in my intelligence. ये नहीं कि मेरा इंटेलिजेंस मेरी बुद्धिमत्ता बाजू में रख के मैं काम कर रहा हूं, नहीं. दिस इज टू बी यूज्ड एज एन असिस्टेंट, एडिशनल. राइट. तो कोई मेरा मदद करने के लिए एक नया कुछ चीज है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मी. ओके, सो एक एक करके देखते हैं. ओके, सो लेट्स इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन टू एआई, which is artificial intelligence. Right? What does that mean? AI evolving landscape. मैं क्यों बोल रहा हूं it is a evolving landscape? Because जितना हम बात करेंगे उतने देर में हजारों AI tools, हजारों AI apps अपने गूगल स्टोर पे, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पे अपलोड हो रहे हैं. राइट. सो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है. बट एआई चीज है क्या? एआई चीज स्टार्ट्स फ्रॉम ऑटोमेशन टू एडवांस सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स. इसका मतलब क्या है? ऑटोमेशन. ऑटोमेशन क्या है? समथिंग दैट द मशीन्स कैन डू. एंड वी हैव सीन ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली लाइन. वहां पे पूरा रोबोटिक्स आ गया है. मशीन्स खुद ब खुद सब काम करते हैं, तो ऑटोमेट हो गया है. आपका पेमेंट, हम सब लोग आजकल जीपे, फोन पे, यूपीआई, भीम ऐप, बहुत कुछ यूज करते हैं ना. तो जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन, पैसा मेरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में, ऐसे हो रहा है. दिस इज ऑल ऑटोमेशन. राइट. इवन दिस इज पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पार्ट ऑफ ऑटोमेशन इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, बट ऑटोमेशन से ही शुरू होता है. तो मेरे क्लासरूम में, मेरे स्कूल में कुछ ऑटोमेशन ला सकता हूं क्या? यस, वही हमें सोचना है. राइट. उसके बाद वी विल टॉक अबाउट एडिशनल इंटेलिजेंस, असिस्टेड इंटेलिजेंस. राइट. ऑल ऑफ दैट व्हाट वी जस्ट स्पोक अबाउट. एंड देन इट लीड टू सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स. खुद ब खुद सीखने लग जाएंगे. जैसे हमारे बच्चे 10th 12th डिग्री होने के बाद उनको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती. उनको अगर सीखना है तो खुद ब खुद सीख लेते हैं. सो वी प्रिपेयर देम टू लर्न फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. दैट इज व्हाट एजुकेशन इज. सो अगर मशीन भी वही कर रहा है तो दैट बिकम्स अ सेल्फ लर्निंग सिस्टम. एब्सोल्युटली. जो हमारे सोचने का ढंग है और हमारे सोचने का जो ईयर ऑन ईयर, साल दर साल बढ़ोतरी होती है, और उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ह्यूमंस, वैसे ही अगर मशीन कर पाए, और मशीन कर रहे हैं,
उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं. All right, so it's important that I understand different AI types. Okay, that is where we are talking about the different AI types. So AI is not just artificial intelligence for me. AI is additional intelligence, assisted intelligence, augmented intelligence, adaptive intelligence, and then autonomous intelligence. All right. ये शब्दों का खेल नहीं है, ये वास्तविकता है. All right. So what is it? AI has intruded our lives without even our knowledge sometimes. And we have let it. हमने ही हमने ही एआई को हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इंट्रूड करने की परमिशन हमने ही दे दिया. कैसे? कितने सालों से आप फेसबुक पे कुछ ना कुछ अपलोड कर रहे हो, अपना सेल्फी अपलोड कर रहे हो, अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन, अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, बहुत कुछ कर रहे हैं ना. तो सिर्फ आप नहीं हो, ऐसे लाखों, करोड़ों, अरबों लोग कर रहे हैं. तो उन सबका डेटा है मेरे पास है ना अभी, फॉर एग्जांपल फेसबुक के पास. तो वो डेटा लेके करेगा क्या? कुछ तो करेगा ना. यस, इतना स्टोरेज है, तो उसका इस्तेमाल मशीन लर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं. तो वन बाय वन वी विल टेक इट फर्दर. राइट. सो इसका मतलब ये है क्या कि आप कुछ अपलोड मत करो. राइट. अगर अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो मशीन सीखेगा कैसे? अगर आपको मशीन को सिखाना नहीं है तो कुछ भी अपलोड मत करो. बट इतना कुछ अपलोड हो चुका है कि अभी ज्यादा अपलोड करने की जरूरत भी नहीं है. मशीन खुद ब खुद सीख रहा है. राइट. सो जब मशीन खुद ब खुद सीखने लग गया तो समझो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, और अभी आ गया है. और द वर्स्ट पार्ट इज, हमारे बच्चे हमारे बाप हैं. एब्सोल्युटली. ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? हमारे से ज्यादा उनको पता होता है. वो सिर्फ चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करते, वो चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, को पायलट इस्तेमाल करते हैं, जेमाइनी इस्तेमाल करते हैं, क्लाउडे इस्तेमाल करते हैं, डेल यूज इस्तेमाल करते हैं. वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बहुत. हमें भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम क्लास ले रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि सबको पता चले कि इस क्लास का गुंडा मैं हूं. राइट. नहीं तो बच्चे लोग सर पे चढ़ जाते हैं. आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज द क्लासरूम प्रॉपरली. So if you have to get the control of your class, you have to be one step ahead of us. तो अभी ये मान के चलो कि जब मशीन सीख रहा है तो मुझे भी सीखना है. यस, बिकॉज दैट्स अ कंपटीशन फॉर मी. मशीन से बिकम आवर कंपटीशन. ये इंसान कम थे जो मशीन भी आ गए कंपटीशन में. यस, एब्सोल्युटली. इंसान से इंसान तो कंपटीशन है ही. अभी मशीन भी आ गए इंसान के साथ कॉम्पिट करने के लिए. और कई कई चीजों में तो मशीन मशीन से हम कॉम्पिट ही नहीं कर सकते. Like for example, repetitive tasks, right? They do it without getting tired. They do it 24/7, no error, no mistakes, क्योंकि थकान नहीं होता है. इंसान का इंसान के थोड़े लिमिटेशंस हैं, तो मशीन्स का कुछ लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे. वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है. सो कई चीजों में मशीन हमसे आगे है. राइट. यस. बट उनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं. अभी मशीन हमारा इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं. कैसे? हमारा डेटा लेके. ठीक है, वो ले रहे हैं. उससे हम फायदा कैसे उठाएं, वो देखना है मुझे. सो द नीड फॉर एआई इन एजुकेशन इज वेरी मच एसेंशियल, वेरी मच नीडेड. ओके, सॉरी, ये स्टॉप हो गया. ओके. यस. हाँ. सो yeah, hope you are able to see the presentation. Okay, so एजुकेशन सिस्टम में इतने चैलेंजेस हैं, हम सबको पता ही है. वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग. एआई का इस्तेमाल करके ये चैलेंजेस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो बात करेंगे. सो व्हाट आर वी फेसिंग? एजुकेटर्स फेस इंक्रीजिंग वर्कलोड. वर्कलोड बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है.
यहाँ पे लेसन प्लानिंग करो, वहां पे असाइनमेंट्स दो, यहाँ पे असेसमेंट्स करो, उसके बाद इवैल्यूएशन करो, उसके बाद फीडबैक दो, उसके बाद क्लास भी लो, क्विज भी कंडक्ट करो, होमवर्क भी दो, होमवर्क करेक्ट करो। अरे बाप रे। यस, ये नहीं कि पहले नहीं करते थे, पहले करते थे, अभी बहुत कुछ कर रहे हैं। पहले छोटा मोटा कुछ करते थे, आजकल बहुत कुछ करने लग रहा है। और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, स्पेशली आफ्टर कोविड, the students' needs have changed. Every student is different. Agar every student is different, that means their learning preference will also be different. Absolutely. Their learning style will be different. Absolutely. Their intelligences will be different. Absolutely. गार्डनर बोलता है, गार्डनर का theory है 16 intelligences, multiple intelligences. Yes. So every one of us have at least 16 intelligences. पता था क्या? शायद पता था, बट बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो अगर ऐसा है कॉम्प्लिकेटेड इंसान, तो उसको सिखाने का तरीका भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग है। एब्सोल्युटली। और आज के जमाने में सबको डिजिटल मीडिया का एक्सेस है, तो आप जो सिखा रहे हो वो पहले से ही सीख के नहीं आता होगा, बट एटलीस्ट देख के आता होगा, या अगर देख के नहीं आया है, जाने के बाद देखेगा। सो हाउ इज इट दैट यू विल ऐड वैल्यू? टीचर का वैल्यू क्या है? अगर वो सब कुछ अपना वीडियो देख के, एप्स पे या यूट्यूब पे देख के अगर सीख रहा है, तो टीचर लोगों का वैल्यू कहाँ से रहा? यही तो प्रॉब्लम है। और उसके ऊपर वी ऑल्सो हैव एडिशनल वर्कलोड, एडिशनल टास्क, एडिशनल एक्टिविटीज। अरे कितना सारा करना पड़ता है। यस, दिस इज वेयर we will have to see how AI can help us. AI tools can help me in handling pressures, boosting efficiency and personalization. आजकल बहुत पर्सनलाइजेशन हो रहा है। करेक्ट। बच्चों को उनका जो फीडबैक देना है, वो पर्सनलाइज्ड फीडबैक होना चाहिए, नॉट जनरल फीडबैक। पास या फेल इतने से काम नहीं चलता है, ग्रेड से काम नहीं चलता है। क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट? ऑल ऑफ दिस इज अ फीडबैक दैट पेरेंट्स एक्सपेक्ट, तो आपको देना है। तो ये थोड़ा हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद ले, तो इट विल बी लिटिल बिट हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। डोंट यू थिंक सो? यस, यस नो, वाई एन, कुछ कुछ चैट में डालो, मुझे थोड़ा समझ में आए कि आप सब लोगों को इसके बारे में क्या लग रहा है। डू यू थिंक that we can make use of AI for helping me across different tasks, whether it is for administrative work, whether it is for my academic work, whether it is for my classroom management, whether it is for assessments, assignments, homework, examination, whatever. Yes, no, कुछ डालो चैट में, और अनम्यूट करके आप बात भी कर सकते हो। यस, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पता है, बट थोड़ा पार्टिसिपेशन आया तो अच्छा रहेगा। या ओके, all right, I can see one response. Yes, okay, yeah, thank you Latika Nair madam. Yes, absolutely, so we will go with that. Yes, तो हम सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना ही है, बट कैसे करें इज अ क्वेश्चन। कहाँ करें इज ऑल्सो क्वेश्चन। कहाँ कहाँ करें और कहाँ ना करें is an important decision teachers like you and me will have to take. All right. Yes, so thank you for your responses. Let's look at AI usage. ठीक है, यूसेज कहाँ पे होता है? तो हमने जो देखा 5 टाइप्स, राइट? टाइप्स: एडिशनल इंटेलिजेंस, असिस्टेड इंटेलिजेंस, एडेप्टिव इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस इंटेलिजेंस। ऑलराइट, सो ये जो इंटेलिजेंस है, 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो मशीन से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कैसे होता है वो देखेंगे अभी।
ठीक है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो बात करेंगे. यस, सो ईच टाइप augments or replicates aspect of human cognition. What is human cognition? Human cognition is human thinking. Human जैसे सोचता है, which is human intelligence, HI, right? We all talk about AI, we don't talk about HI, right? So it's important we see how human thinking and decision making can be helped. ये नहीं कि मैं पूरा मशीन पे निर्भर रहूंगा. मशीन से मुझे क्या मदद मिल सकती है वो मुझे देखना है, और किस चीजों में, ताकि मेरा सोच बढ़े, मेरा नॉलेज बढ़े, मेरी बुद्धिमत्ता बढ़े, इंटेलिजेंस, एंड मेरा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी बढ़े, इंक्रीज. So these are some of the ways in which I will have to use something from artificial intelligence. Yes, there is a message on the chat, Lavina madam. Yes, activity based learning में syllabus कैसे मैनेज करें जब टाइम. यस, वेरी गुड, ये मैं कवर करने वाला हूँ. वेरी गुड. आजकल इतने एक्टिविटीज देने पड़ते हैं, इतने एक्टिविटीज देने पड़ते हैं बच्चों को. स्कूल में तो करवाना ही है, घर पे भी उनको एक्टिविटी देना है. क्यों? क्योंकि मम्मी डैडी, सॉरी, मम्मी डैडी को मोबाइल पे जो बैठना है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को एक्टिविटी देके बिठाओ. राइट, सो आई विल कम टू इट. राइट, वी विल टॉक अबाउट PBL and ABL. राइट, project based learning and activity based learning is very important. We have to do it. ओके, इतने एक्टिविटीज में से मेरे दिमाग के उपज से कितने आएंगे? 10, 12, 15, 20, 25 एक्टिविटीज आएंगे. उससे ज्यादा बहुत सोचना पड़ता है, और सोचते सोचते दिमाग का दही बन जाता है. राइट, सिर्फ एक्टिविटी के बारे में नहीं सोचना है मुझे, और भी बहुत कुछ सोचना है ना. तो अगर सिर्फ वही सोचते बैठूंगा तो कैसे होगा? तो यहाँ पे we can have that additional intelligence and assisted intelligence to help me in in giving me suggestions as to what these activities could be. Okay, wonderful. Thank you for the question. Let's get going. So let's talk about additional intelligence now. ठीक है, तो additional intelligence है क्या? Additional intelligence, addition of intelligence. Okay, what is addition of intelligence? Which intelligence? Human intelligence plus artificial intelligence is additional intelligence. Okay, so it is adding on. Wonderful, very good. So this is where I can rely on AI for additional information. मुझे additional information चाहिए. For example, जो मेरे बुक्स में है, right? टेक्स्ट बुक में हो या कुछ भी हो. फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजियम्स, राइट, फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया, तो मुझे 10-12 पता होंगे. राइट, दिल्ली के एक चार चार पांच है, कोलकाता में एक दो है, हैदराबाद में एक दो है, मुंबई में एक दो है, बस. उससे ज्यादा मुझे पता हो तो भी मुझे याद नहीं रहेगा. ठीक है, मुझे सब कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है आजकल. दिस इज वेयर वी विल हैव द एडिशनल इंटेलिजेंस हेल्पिंग मी, wherein it is providing extra information. Okay, did you all know that every state of India has its own bird, its own animal, its own tree, its own fruit? Oh wow, yes. नाउ मुझे पता था नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल गेम क्या है, राइट, ऑल ऑफ दैट वी नो. बट देन एवरी स्टेट हैज इट. नाउ दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ये तो मुझे गूगल पे ही मिल जाता, बट गूगल मैंने कभी किया नहीं. अभी ठीक है, कभी किया नहीं, ठीक है. अभी चैट जीपीटी आ गया, तो चैट जीपीटी से मैं पूछ लेता हूँ कि कर्नाटका स्टेट का स्टेट बर्ड कौन सा है. पूछ लो, मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा. इट्स नॉट दैट यू विल नॉट. दिस इज additional intelligence, or you can say additional information. Okay, so how will you use it? I can build some activity around it. I can bring about some discussion around it.
नाउ फॉर एग्जांपल अभी हिस्ट्री की बात करेंगे तो राइट, तो हिस्ट्री की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल कर्नाटक की बात कर रहे हैं ना, तो लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट एम्पायर or the richest empire that was in South India in ancient days. So I will get to know that it is Vijayanagar साम्राज्य। वैसे चोला भी है, पांड्यन भी है, चित्रकूटा भी है, बहुत सारे हैं, but the biggest and the richest and the most famous would come to be as per my knowledge and my intelligence, I think it is going to be Vijayanagar साम्राज्य। Okay, now I may get to know that it was the Cholas or the Pandyans who were even more famous and more rich than Vijayanagar. I don't know, right? So this is that additional intelligence that I will get to know. मुझे पहले पता है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, मुझे पता नहीं है ना, तो वहां पे मैं एडिशनल इंटेलिजेंस की बात कर सकता हूं। एंड ऑल ऑफ दीज टूल्स, ये जो टूल्स हैं अपने पास, these are called the generative AI tools, the chat GPT हो या डेल हो, कोपायलट हो, जेमाइनी हो, क्लाउडे हो, अभी तो परप्लेक्सिटी आ गया, राइट? इफ यू आर यूजिंग एयरटेल और थैंक यू ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे, तो एयरटेल इज गिविंग यू 1 year फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी की बात करो तो दीज आर ऑल जेनरेटिव एआई टूल्स। ये रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, दीज आर जनरेटिव एआई टूल्स। नाउ दिस जनरेटिव एआई, जनरेटिव का क्या मतलब है? वो जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? इट इज जनरेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द वेरियस डिफरेंट सोर्सेस एंड गिविंग इट टू यू ऑन अ प्लेटर। गूगल भी वही करता है, बट गूगल डंप देता है, राइट, लिंक देता है, ये है भाई, इतने सारे हैं, आप देख लो, जो आपको चाहिए ले लो। बट ये क्या कर रहा है? ये टूल्स, ये टूल्स हमें वो सब लेके मिक्स एंड मैच करके पूरा अच्छे तरीके से परोस रहा है। ये अलग, गूगल अलग अलग परोसता है, ये अच्छी तरह से परोस रहा है, मुझे सिर्फ खाना है बस। ना इसका इस्तेमाल कैसे करें? इसका इस्तेमाल ऐसे करें कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब हम क्लासरूम में देंगे, तभी बच्चे लोग इंटरेस्ट लेंगे, तभी बच्चे लोगों को पता चलेगा कि अरे ये तो उस वीडियो में था ही नहीं। हाँ बिल्कुल, तो वीडियो पे निर्भर रहोगे तो बहुत कुछ खो रहे हो, क्योंकि आई एम गिविंग यू एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो इट इज नॉट जस्ट एडिशनल इंटेलिजेंस, इट इज ऑल्सो एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आई एम पासिंग। क्या बात है, वंडरफुल। नाउ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आ गया मेरे पास, उस पे मैं उनको एक वीकेंड का प्रोजेक्ट दे सकता हूँ, नहीं तो कुछ एक्टिविटी। ओके, अभी मुझे समझ में आ गया कि चोला, पांड्यन, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, विजयनगर साम्राज्य, राइट, ऑल ऑफ दैट केम फ्रॉम साउथ इंडिया। तो नाउ आई वांट टू डू सम एक्टिविटी अराउंड इट। तो ग्रुप्स बनाओ और ईच इंडिविजुअल ग्रुप को एक्टिविटी दे दो कि इस किंगडम के बारे में कब कब से कब तक था, कितने साल था, कौन से फेमस राजा थे उसमें, वो राजा ने क्या किया, राजा हो, रानी हो, कोई भी हो, उसके बारे में एक्टिविटी दे दे। वो भी बच्चे लोग स्मार्ट है, वो भी ऑनलाइन ही जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, वो भी चैट जीपीटी पे जाएंगे, उधर से लेके आएंगे, कोई बात नहीं, एक्टिविटी दिया। बट ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग आवर लाइफ इजी। एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे इतना सारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आजकल। क्यों? बहुत सारा मेहनत अपना चैट जीपीटी करके दे रहा है, मुझे डंप दे रहा है, मुझे सिर्फ उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है और समझना है, वहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है ना। मैंने ये एक्टिविटी दे दिया और बच्चे लोगों ने सबमिट भी कर दिया। वो क्या कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। यस, हम भी क्या करते हैं? हम भी कॉपी पेस्ट ही करते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी शुड अवॉइड, बिकॉज ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सब जो एआई के टूल्स हैं, इट इज मेकिंग आवर लाइफ इजी, बट यू डोंट बिकम लेजी। अगर आप लेजी हो गए तो इट इज ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस है ही नहीं, दैट विल बिकम डेंजरस। ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, इतना सारा डेटा लेके अभी आपने जो एक्टिविटी दे दिया, राइट, वो एक्टिविटी इन लोगों ने सबमिट कर दिया। अब सबमिट
सबमिट करने के बाद आपको पता करना चाहिए या पता यानी करेक्शन करना है। तो अगर करेक्शन करना है तो उसको भी हम चैट जीपीटी पे डाल के उसका ग्रेडिंग कर सकते हैं। अरे वाह! बट उसके लिए ना थोड़ा अपना ट्यूनिंग करना पड़ेगा। वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूं। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। सो फॉर्म ऑफ एनालिटिक्स, राइट? पैटर्न रिकग्निशन, राइट? पैटर्न यानी ये बच्चा कैसे लिखता है, खुद से लिखा है या एआई का इस्तेमाल किया है, राइट? एआई का इस्तेमाल किया है बट खुद का दिमाग भी इसमें इस्तेमाल किया है उसने, राइट? तो इसको थोड़ा सा भाषा ज्यादा देना पड़ेगा, टाइप्स। एंड देन प्रेडिक्टिव इंसाइट्स, आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। ये बच्चा है ना, ये बच्चा खुद का प्रोजेक्ट करता है, थोड़ी देर से सबमिट करता है बट खुद का प्रोजेक्ट करता है, राइट? ये आपको पता है। अभी माय चैट जीपीटी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज कि ये तो ओरिजिनल वर्क है। अरे भाई, ये मेरे से कॉपी नहीं किया इसने, शाबाशी दो इसको, राइट? सो ये सब अगर मुझे जानना है तो इसका भी हम उल्टा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट? यस। सो लवीना हैज पुट समथिंग एल्स अगेन। स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज करते वक्त लर्निंग आउटकम्स कैसे असेस करें? स्टोरी टेलिंग मेथड, हाँ, ओके। सो यहाँ पे आपको असेसमेंट करना है तो आपको रूब्रिक्स चाहिए होगा, राइट? सो आपने जो बोला है उसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, राइट? It's about creativity, it's about imagination, and it's about communication, right? So कितना क्रिएटिव है बच्चा, उस पे मार्क्स दो। उतना इसका इमेजिनेशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल, जंगल के बारे में एक कहानी सुनाओ तो ये जंगल हिमालय का जंगल बताएगा। अरे बाप रे, हिमालय का जंगल में पेड़ रहेंगे क्या? पता नहीं मुझे, पर वो अपने अपने हिसाब से कुछ सोच के बता रहा है। वाह! इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी स्टार्ट सेइंग दैट बाकी सब लोग तो क्या नॉर्मल जंगल के बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो हिमालय के ऊपर मानस सरोवर में जो जंगल है उसके बारे में बात करूंगा। वाओ! क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, राइट? सो ये अगर हम पहले से बच्चे को बता दें, दिस इज पार्ट ऑफ योर रूब्रिक, राइट? पहले से अगर हम बच्चों को बता दें और बच्चे यानी बच्चों के पेरेंट्स को भी बता दें कि ओरिजिनलिटी पे भी मार्क्स है, कितना ओरिजिनल है, राइट? तो उस पे भी मार्क्स देंगे। ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन, ये ऐसे मैं ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से इतना सोच सकता हूँ। इसी का मैंने यही डाल दो ना, स्टोरी टेलिंग मेथड, हाउ कैन आई असेस द स्टोरी टेलिंग मेथड और व्हाट कुड बी द लर्निंग आउटकम्स of a storytelling method and how can I evaluate it for for a first grade student? चैट जीपीटी उसका भी आंसर दे देगा आपको। आप थोड़ा सोच के बैठे हो, उससे वो एडिशनल इंटेलिजेंस दे रहा है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका इस्तेमाल करो। आप भी सीखोगे, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका भी इमेजिनेशन बढ़ेगा, आपका भी क्रिएटिविटी बढ़ेगा। और क्या चाहिए? यस। अगर मैं मेरा इमेजिनेशन नहीं बढ़ाऊंगा, मेरा क्रिएटिविटी नहीं बढ़ाऊंगा, मेरा सोचने का ढंग नहीं बदलूंगा, तो आने वाले समय में हमारा मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर रहा है, अगर वही सब कुछ करेगा तो मैं क्या करूंगा? एब्सोल्युटली। सो दिस इज द टाइम फॉर ह्यूमंस टू वेक अप, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इंसान जो कम थे कंपटीशन में, मशीन भी आ गए। यस, मशीन आ गए मेरे साथ कंपटीशन करने के लिए। पहले तो सिर्फ वॉशिंग मशीन और क्या अपना ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब ऑटोमेट हुआ तो ठीक है। अभी तो मेरे सोचने का ढंग भी ऑटोमेट हो रहा है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, राइट? तो सोचने वाली बात है कि उसको हम इस्तेमाल करके मेरा इंटेलिजेंस और मेरा नॉलेज भी कैसे मैं बढ़ाऊं। That is where we will have to look at it as an additional intelligence. Wonderful. Keep asking questions. I'm loving the questions you're asking. Yes, so this is what will make every one of us think. And at Acumen today, we always talk about this. जो मेरे पहले टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अटेंड किए होंगे इन पर्सन और लास्ट टाइम ऑनलाइन आप आए होंगे, तो आपको पता है, आई कीप टेलिंग
The more you learn, the more you think, the more you think, the more you learn. So it's a continuous cycle. That's exactly what we are talking about here. अभी मुझे लर्न करने के लिए टीचर ही चाहिए ऐसा नहीं है. मेरा ये जो एडिशनल इंटेलिजेंस टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, उसका इस्तेमाल करके I can learn. Absolutely. It'll give a different perspective. Wow. अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था. क्या बात है. Yeah, this is a very good idea. Let me do it. Right. So make use of all of these tools for uh, uh, for for uh, helping you in bringing in a structure to your teaching. Because teaching learning process is a madness. ये madness है. I need to bring in some method to the madness. And to bring a method to the madness, I will have to take the help of some tools. और अभी मेरे पास बहुत सारे tools हैं, which are coming to me as artificial intelligence tools, generative AI tools, so on and so forth. Right? Good question. How can we manage a mixed ability classroom where some students are very fast and others are slow? This is a normal thing in every class. It is not just about the fast learners and slow learners. It's also about a mix of students who have different learning styles and preferences. Yes, it's a challenge. We spoke about it, right? We spoke about it in the sense I touched base upon initially when we spoke about the challenges. So I will take this up. These are wonderful questions. लेट्स टॉक अबाउट सम यूज केस. आपने आपने एग्जांपल्स पूछे तो एग्जांपल्स है देखो. वाओ. ओके. एआई ड्रिवन डैशबोर्ड्स. ओके, तो ये डैशबोर्ड्स बनाता है ना, तो डैशबोर्ड्स बाद में बनेगा, बट क्या है. कैन यूज एआई फॉर रिव्यू क्लास परफॉर्मेंस. सबका मिला के कैसा है. हाउ मेनी ऑफ देम हैव स्कोर्ड 90%, हाउ मेनी ऑफ देम हैव स्कोर्ड 80%. अरे ये तो पता है मुझे. यस, इसका इस्तेमाल करके हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कॉमन मिसकंसेप्शन. सब लोगों ने एक ही चीज पे गलत आंसर दिया है. इसका मतलब है कि द होल ऑफ द क्लास, द एंटायर क्लास हैज नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ये अगर मुझे पता करना है तो एआई का इस्तेमाल करना है. नहीं तो ग्रेड पे जाएंगे तो 60% भी रहेंगे, 40% वाले भी रहेंगे, 90% वाले भी रहेंगे. बट नॉट दैट I know कि 90% वाला has answered all the questions right, whereas 60% वाले ने हाँ, कम आंसर्स करेक्ट दिए हैं. But is there one question across all of them who where everybody has given a wrong answer? अगर ये मुझे पता चलेगा ना, तो I will start focusing on that topic more. उसका रिवीजन करवाऊंगा ना, मुझे पता ही नहीं है. राइट. सो यहाँ पे I can use AI, artificial intelligence, assisted and additional intelligence. Spot trends in student achievement. Okay. तो कौन से वाले बच्चे, कौन से वाले यानी स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है, उनमें राइट फास्ट लर्नर में कुछ मिस्टेक्स हैं क्या. फास्ट लर्नर हैज ऑलवेज, most of the fast learners have got only 60 to 70%, but slow learners have scored 80%. These are all insights. ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा. बट जब मेरे मेरे क्लास में 30-40 बच्चे रहेंगे, ये सब अकेले खुद खुद करने में थोड़ा प्रॉब्लम है ना. इट्स क्वाइट अ टीडियस टास्क. और उतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी, क्योंकि सिर्फ यही नहीं करना है ना मुझे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट असाइनमेंट एंड करेक्शन एंड वैल्यूएशन एंड मार्क्स. It's also about lesson planning. It's also about questions. It's also about activities. It's also about homework. Oh my goodness. तो कहाँ पे AI मुझे हेल्प कर सकता है, वो मुझे सोच के प्लान करके उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. So whatever question you ask, I will tell you, I can definitely use AI for solving all your problems, because everything is data driven today, and data driven, right? We can understand the trends and make decisions more efficiently. Okay. तो जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग लेते हो तब फीडबैक देना पड़ता है. तो फीडबैक देते समय सिर्फ मार्क्स पे देंगे या आपके समझ के हिसाब से देंगे. नहीं, मेरे समझ के हिसाब से तो मैं देता ही हूँ, मार्क्स के हिसाब से भी देता हूँ. बट अगर मैं डिटेल में जाके बोलूंगा कि सिर्फ आपका बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चों ने ये गलत
आंसर दिया है क्योंकि देयर इज सम मिसकंसेप्शन और इसका मैं एडिशनल क्लास रिवीजन लेने वाली हूं। तो बच्चा भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, वो दोनों खुश, तो आप खुश। So, can I have a system that can help me with this? Absolutely, because everything is data. Wonderful. तो मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। Yes. तो वो सब one by one करना पड़ेगा, which is uh, which is something that the school will have to plan. But for the time being, you as an individual teacher can make use of all of this, at least for your students. Okay. ये सब demo will come in our subsequent sessions. As I told you, we're going to have series of such sessions. All right. Let's go to the next intelligence, which is assisted intelligence, AI. Correct? So, not necessarily that today we will cover all five. टाइम के अभाव से शायद बीच में कभी रोकना पड़े, दैट्स फाइन। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एनी विच वेज। और अगर आप नेक्स्ट टाइम या कोई भी सेशन आप अगर अटेंड नहीं कर पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पे डालते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। राइट, वंडरफुल। जब आप अटेंड करते हो तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे डाल दिया, इट इज लाइक मशीन इज गिविंग यू एंड यू आर जस्ट कंज्यूमिंग, यू कांट इंटरेक्ट देयर, यू कांट आस्क अ क्वेश्चन देयर, राइट? सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट असिस्टेड इंटेलिजेंस, वन मोर एआई। ओके, सो व्हाट इज असिस्टेड? ये मुझे असिस्ट कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले दे रहा है, ये मुझे असिस्ट कर रहा है। कैसे? Add on human intelligence, enhances awareness, but does not actively participate in decision making. ये decision making नहीं कर रहा है, ये आपको inputs दे रहा है, ये आपको like additional information, ये आपको और ज्यादा information देने का कोशिश कर रहा है। Yes, same thing, right? For example, human input required. अगर उससे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है और आपको उसका असिस्टेंस लेना है, तो यू विल हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। ठीक है? अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आइंस्टाइन आइंस्टाइन आ गया आपसे मिलने, ठीक है, अरे बाप रे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओ माय गुडनेस, अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर मुझे आ गया मिलने, तो मैं उसको क्या क्वेश्चन पूछूंगा? राइट, क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा मैं? ये द क्वेश्चन विल बी लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन आ गया भाई। यस, तो उसको मैं पूछूंगा कि रिलेटिविटी का आज के जमाने में अगर आप इन्वेंट करते तो कैसा होता? तो उसको सोचने पे मजबूर कर दिया। और बट वो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो सोचने का, ठीक है, वो उसके हिसाब से वो आंसर देगा। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन को मैं जाके पूछूंगा कि टेबल ऑफ 12 बताओ, तो सही लगेगा? वो बता देगा, वो उसको नहीं है ऐसा आता नहीं है, ऐसा नहीं है। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का आप 12 12 के टेबल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये थोड़ा नाइंसाफी है, राइट? तो मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से उस मशीन को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना। So that is where human input is required, and this is where human intelligence plays a role. The more intelligent questions you will ask the system, the more intelligent responses will come from the machine. Yes. So this is where I keep telling it is always human intelligence. We are driving artificial intelligence, not the other way around. But आज के ज़माने में, कॉपी पेस्ट के ज़माने में, गेटिंग एवरीथिंग इजी, मेकिंग मी लेजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस बाजू में ही रख रहा हूँ ना मैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी हमारे बच्चों को समझाना है, राइट? यू कांट स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग एनी ऑफ दीज टूल्स, you will have to help them to use it in the right way, so that not only they learn, you will also learn. Now all of this is becoming collective learning and collective intelligence. Yes, wonderful. All right, okay. Very pertinent question again, Lavina madam. In the age of digital distractions, how can we develop deep focus and curiosity in primary grade students? We have an entire playlist on our YouTube channel, right? Please allow me a minute to share the link of our YouTube channel playlist, wherein we talk about
digital device distancing, 3D, DDD, right? So please allow me. I'm just YouTube channel. I come into the YouTube channel. Yes. So यहाँ पे, good that you asked. We've been working on this for quite some time now. So allow me to share the playlist wherein we have created it long time back. Digital device distancing, right? Yes. So यहाँ पे मेरे 10 videos हैं. Wow. Okay. So we have 10 videos as to why we should have digital device distancing, and this is something that will give you. And these 10 videos, these are all small videos, okay, explanatory videos. 2 मिनट 3 मिनट ऐसे videos हैं. तो ये आप देख लो, ठीक है. इससे आपको आइडिया मिलेगा कि बच्चों को डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाएं. ऑलराइट. सो लेट मी शेयर दिस लिंक विथ यू. किधर है? एक मिनट. थोड़ा मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग बिकॉज टू मेनी विंडोज आर ओपन. ऑलराइट. सो ये अगर मेरा प्लेलिस्ट है. हाँ. सो I will have to share the playlist with you, right? And view full playlist. हाँ. View full playlist, and here I'm going to share it with you. Yes. Okay. So ये हमारा playlist है. I'm sharing it on the chat. तो आप देख लो. This will be really helpful. Yes. And हमारा जो YouTube चैनल है, Acumen Today YouTube चैनल, उस पे बहुत सारे वीडियोस हैं. Not only on digital device distancing, but on a lot of issues that teachers face. Right. So let me just tell you, we have close to around किधर है? हाँ, मेरे चैनल पे कितने वीडियोस है? More than 300 videos if I'm not wrong. I'm just telling you. नहीं, 186 वीडियोस. बाकी सब थोड़ा हमने डिलीट कर दिया है. या सो 186 वीडियोस हैं. उसमें से मैंने आपको एक प्लेलिस्ट का दिया है जिसमें 10 हैं. उसमें पहले 2-3 टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जो हमने किए हैं उसके भी वीडियोस हैं. राइट. सो आप वहां पे देख सकते हो. टेक अ टाइम. नथिंग टू there's no hurry on it. Hurry about it. Yes. Okay. All right. So now let me go back to my presentation. So yeah, you ask questions. You will make me think, and it will also help me in bringing up the right inputs that I can give you, because we have already worked on it. I already have a lot of things that I can share with you folks. All right. So ह्यूमन इनपुट के बारे में बात कर रहा था ना. तो the better questions I ask, the better answers I will get, because मशीन में इंटेलिजेंस बहुत है. राइट. उसमें आइंस्टाइन भी है, उसके भास्कराचार्य भी है, उसमें श्रीनिवासन रामानुजम भी है, उसमें सीवी रामन भी है, उसमें आपका अरिस्टोटल भी है, गैलीलियो भी है. सब लोग हैं उसमें वहां पे. क्यों? सब लोग का डेटा है ना. तो सब लोगों का डेटा अवेलेबल है. तो वो डेटा लेके आपको आंसर दे रहा है. बट आंसर मुझे कुछ चाहिए तो मेरा क्वेश्चन भी सही होना चाहिए. So now what we all need to learn is the art of asking the right questions in the right way, so that I will get the right response and I will learn the right things. So that is where our human intelligence will play a role. So here, because machines work, they operate within well-defined parameters. Well-defined parameters यानी अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, the art of asking question is called prompt engineering. It is called prompting. But then, if you have to be really effective in asking the right question, the right question is about the context, the level, the response you want,
the detailing you want, all of this, right? So agar mujhe wo question पूछना है, which is like I'm prompting the machine to give me a response, I will have to have a well defined prompt. To have a well defined prompt, it is what it is called, or it is named as prompt engineering. इसका भी हम बाद में एक सेशन लेने वाले हैं, so that we will equip you with a lot of easy way of handling your pressures. So examples of assisted intelligence, right? Assisted intelligence, ये देखो, automatically grade assignments, create quizzes, evaluate quizzes, written answers भी evaluate करें, right? Which will save a lot of your routine marking hours, right? And then generating detailed consistent feedback for students, feedback भी generate करें, अरे बढ़िया है, और क्या चाहिए आपको, पूरा टाइम सेव हो गया, जनरेट करके दिया, आप उसको पढ़ोगे और थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं या थोड़ा बहुत आपका उसमें इनपुट डालना है तो डाल सकते हो. दैट इज वेयर it becomes helpful. It'll help you. You can also look at speech recognition, right? Audio into text. अगर मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पे ऑडियो टू टेक्स्ट ऑलरेडी कन्वर्ट हो रहा है. क्लासरूम में अगर मुझे मुझे कुछ करना है तो वो भी हो सकता है, उसके लिए भी टूल्स हैं. तो ये जो बहुत सारे टूल्स के बारे में बात कर रहा हूं, वो लिस्ट हम धीरे धीरे अगले सेशंस में देते जाएंगे, right? So here it's about streamlining but reliant on human judgment. I'm not allowing the system to take over me. Human judgment मैं ही लूंगा, but मुझे इनपुट आ रहा है. बच्चे ने ओरल एग्जाम लेते हो, कभी कभी ओरल एग्जाम लेते लेते आप सुन रहे हो बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहते हैं, तो इवेलुएट ठीक तरह से कर नहीं पा रहे हो. जब ओरल एग्जाम ले रहे हो, अगर आप उसको रिकॉर्ड कर लें और रिकॉर्डिंग का एनालिसिस करें, तो ऑडियो टू टेक्स्ट हो जाएगा और उसने क्या क्या बात किया है, उस चीज के बारे में बात किया, उस टॉपिक के बारे में बात किया है या नहीं किया है, वो सब एनालिसिस हो सकता है बैकएंड में. ऐसा सिस्टम भी है. तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ओरल एग्जाम में 10 में से 6 आ सकता है इसको. बट जब मेरा सिस्टम एनालिसिस कर रहा है तो वो 9 दे रहा है, और अब बाप रे, अच्छा, तो मे बी आई मिस्ड आउट समथिंग, सो लेट मी सी. तो बाद में आपको पता चलता है, हाँ हाँ हाँ, 6 तो बहुत कम हुआ, 9 भी थोड़ा ज्यादा हुआ, ठीक है, आई विल गिव हिम 7.5, right? Yes. So by this you are not only saving your time, but you are also getting to know a little bit more about how the feedback can be analyzed. और predictive test, ये example है, okay? Predictive test suggests words or phrases. ये जब मैं Google Gmail पे टाइप कर रहा हूँ तब भी आता है, राइट? व्हाट्सएप पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तब भी आता है. तो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट वो ऑलरेडी है, राइट? सो आई कैन मेक यूज ऑफ इट. अगर मुझे नोट्स बनाने हैं तो आई कैन मेक यूज ऑफ दिस. इट बिकम्स लिटिल मोर इजी एंड फास्ट. एडेप्टिव इंटेलिजेंस, ये एक बात करके ना आज का खत्म करते हैं, बिकॉज 1 घंटा होने को आ रहा है. आई नो यू आर ऑल connecting from home and you have other work to do also. So adaptive intelligence is something about continuous self learning. यही तो मुझे करना है. आप सब लोग भी सेल्फ लर्निंग के लिए ही आज का सेशन अटेंड कर रहे हो ना? एब्सोल्युटली. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सिस्टम भी सेल्फ लर्निंग करने लग गया तो और क्या, उससे बढ़िया चीज और क्या रहेगा? क्योंकि ना जो कंसेप्ट मेरे 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में है, उसका इस्तेमाल मैं 7th और 8th में भी करता हूँ. बट क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं. बिल्कुल. अरे कल का बोला आज नहीं याद रखते हैं. 2 साल पहले जो 4th स्टैंडर्ड में किया था 6th स्टैंडर्ड में कहाँ से याद रखेंगे? करेक्ट. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी भूल जाऊं. मुझे रेफरेंस देना पड़ता है. तो रेफरेंस देने के लिए आई कैन मेक यूज ऑफ एडेप्टिव लर्निंग, wherein adjusts its logic and recommendations as condition and data change. बच्चे को 4th स्टैंडर्ड का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, तो आई विल गो बैक एंड थोड़ा बहुत उसको आई विल गिव सम additional inputs for the child to be up to the mark in 6th standard. नहीं तो उसके मार्क्स अभी कम हो जाएंगे, राइट? सो
adapt learning paths in real time based on each student's performance. स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी मुझे पता चल गया कि उसको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, तो कितने बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है उनको सेग्रीगेट करेंगे, उनको एडिशनल कुछ देंगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन वुड हैव बीन टॉट इन फोर्थ स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड, और बच्चा सिक्स स्टैंडर्ड में है, तो कुछ करना पड़ेगा. सो दिस इज वेयर परफॉर्मेंस को लेके आई विल हैव टू ब्रिंग इन लर्निंग पाथ, राइट. सो फॉर एग्जांपल मैथ कंसेप्ट, वही मैं बोला, कैन ऑफर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और एडजस्ट द लेसन्स डिफिकल्टी लेवल. हाँ, डिफिकल्टी लेवल में कम कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ, हम वही करते हैं ना. डिफिकल्ट सम नहीं देते, थोड़ा इजी सम देते हैं. इजी सम, पांच छह इजी सम के बाद एक डिफिकल्ट देते हैं, देखते हैं कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है या नहीं. सॉल्व किया तो और एक डिफिकल्ट देते हैं, नहीं तो फिर से थोड़ा नीचे लाते हैं, राइट. सो ये हम ह्यूमन टीचर्स वो कर ही रहे हैं, बट इसका हम अगर मशीन से कुछ फायदा उठा ले तो मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा. तो इसके लिए ये देखिए, ये मैंने अपना पहला ई बुक विच इज कॉल्ड एडेप्टिव इनोवेशन, ये भी एआई आ गया, राइट. एडेप्टिव इंटेलिजेंस नहीं है, एडेप्टिव इनोवेशन है, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू ऑन किंडल, राइट. किंडल अपना अमेजोन पे किंडल है, right? So you can read it online. It's available, right? I've only written. So adaptive innovation, empowering educators, AI in professional development and training. Training में teaching भी आ गया, मेरा professional development भी आ गया. AI कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या है वो सब मैंने इसमें डाला है. तो ये मैं लिंक आपसे शेयर करता हूँ, नहीं तो ये आप ढूंढ भी सकते हो. Go on to Amazon. You will have to what परचेज करना पड़ेगा, बट परचेजिंग के लिए भी कितना है, 129 ओनली, राइट. सो इट्स नॉट मच. आई हैव केप्ट इट एज लेस एज पॉसिबल बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक यूज ऑफ इट, राइट. सो जो भी हम आज बात कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ आपको इस ई बुक से मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई हैड टू कवर टुडे, ठीक है. इन कंटिन्यूएशन अगले 10 दिन में और एक सेशन हम शेड्यूल करने वाले हैं, जिसका डिटेल्स आपको जैसे इस बार मिला वैसे ही आपको अगली बार भी मिलेगा. और अगर आप इफ यू वांट टू बी connected online with us, you can drop a message to our WhatsApp number 8484841446. That's Acumen Today official WhatsApp number है. I'm sharing it on the chat 8484841446. Yes. So ये भी आप ये कर सकते हैं, right? Yes. So that is what I had to cover. I can see Lavina madam's feedback here for highlighting the importance of self-learning. Very important, absolutely. Our teacher must also be continuous learner. We have to. We don't have a choice. Otherwise, we'll not be relevant, and then we'll complain that students don't respect me, right? So let's not give that a chance. Try to apply this in my own teaching journey. You have to. Yes, absolutely. I would love to hear from you after a few sessions of ours. It reminded me that growth doesn't stop at the classroom door. It begins with us. We are just enablers. We are not just educators. We are enablers. Right? We talk about 3 E's, right? At Acumen Today, we talk about 3 E's, which is enable, enrich, and empower the teachers, and enable, enrich, and empower the students so that they become lifelong learners. And that is what our job is as educators. We have to engage effectively. Only then we will be able to enable, enrich, and empower them. So take a look at this. This is something which will certainly open up more horizons for you to think. It's a perspective, and you can build on your perspective, different perspectives. It's all about innovation, right? We are all very innovative. The way I think of innovation and the way you think of innovation is different.
because I think differently than you. So that's exactly adaptive innovation that I have brought about. So take a look at this and share your feedback. I'll be more than happy to take it. And there are further few more ebooks in the pipeline. So stay tuned. And I would take this opportunity to thank every one of you for taking this time out. Thank you. Thank you once again. And keep thinking, keep learning. The more you learn, the more you think, the more you think, the more you learn. And that is what it is. Because please remember, machines are here. Machines are competing with us. And I have to be ahead of them, right? Because life is a race. Yeah. Yes, life is a race. And I have to win the race. I don't have a choice because it's my survival. All right. Thank you so much. Thank you all. Have a good evening ahead. See you again uh, very soon for the second session on understanding AI. That's it for now. Thank you all. Bye bye. Good night. Good night.